Hello students, good morning. Welcome back to our YouTube channel. This is Mona Yadav. So let's continue our discussion on this chapter from class 9, that is the story of village Palampur. Your chapter number 1 from economics book, and this is part 7 of this series. So students, in previous part we discussed about the capital needed in the farming, and today we will discuss about the non-farm activities in Palampur. Okay, then let's start now. Our topic is non-farm activities in Palampur. Then this is the main question. Non-farm activities in Palampur क्या है? Means farming को छोड़ के जितनी भी other activities है, all are called that non-farm activities. Okay, and as you all know that nearly 75% of people in Palampur they are actually involved in this farming sector, and farming is the main activity in Palampur, right? But remaining 25%, where are they involved? They are involved in non-farming activities. Non-farming activities are those activities which are apart from farming activities. Farming activities को छोड़ के जितनी भी other activities पालमपुर विलेज में की जाती है, that are called non-farming activities. Okay, so those things under the category of non-farming activities. So we will discuss about four different non-farming activities in Palampur. Okay, then the first one is related to producing milk, means dairy farming. Then the first is dairy, the other common activity. Okay, so dairy is common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra, and grows during the rainy season. Okay, then first is dairy farming is related to producing milk. Okay, so people in this village, those who are involved in this dairy production, what they do, they keep buffaloes with themselves, and they provide all the required food for buffalo. For example, jowar and bajra. Okay, that grows during the rainy season. Means डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि लोग एक तरह से बफेलोज को रखते हैं, साथ में उनकी जितनी भी रिक्वायर्ड उनका फूड होता है, उनका जो फॉडर क्रॉप्स होती है उसको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. जो ज्वार एंड बाजरा लाइक जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इनको एक तरह से फॉडर क्रॉप्स के रूप में भी हम कह सकते हैं. तो ये रेनी सीजन के ड्यूरिंग ग्रो किया जाता है. एंड सो बफेलोज को डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रास उनको खिलाई जाती है. एंड द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको रायगंज में सेल किया जाता है, बेचा जाता है द नियर बाय लार्ज विलेज. एज यू ऑलरेडी रीड अबाउट द रायगंज. ओके, नियर बाय विलेज बाय पालमपुर. ओके, देन they provide that required the grass to the buffaloes so that it should produce good amount of milk. Okay, तो वो buffaloes को जो है अच्छे अमाउंट में ग्रास जो है वो खिलाते हैं, उनका मतलब कंप्लीटली रिक्वायरमेंट जो पूरा करते हैं, और उससे ज्यादा मिल्क, ज्यादा अमाउंट में मिल्क जो है गेन करते हैं. वट एवर द मिल्क देन दिस पीपल कलेक्ट एंड दे सेल दोज टू द नियर बाय प्लेस इन दिस पालमपुर. ओके, जो पालमपुर के नियर बाय विलेज है वहां पे उसको सेल किया जाता है. टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन and come chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. शाहपुर शहर के दो ट्रेडर्स ने रायगंज में मिल्क कलेक्शन का जो है एक सेंटर ओपन किया हुआ है. ओके, तो वहां पे वो मिल्क कलेक्शन भी करते हैं, साथ में चिलिंग सेंटर मींस वहां पे उसको ठंडा भी रखा जाता है, फ्रीजिंग सिस्टम भी है. तो वहां से जो है दूध को दूर के क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां के सिटीज में, टाउन्स में उसको एक तरह से बेचने के लिए, सेल करने के लिए भेजा जाता है. ओके, देन दिस इज द फर्स्ट कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर, दैट इज द डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी, एंड मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी. ओके, नाउ by selling this milk, people they earn from this production. Okay, next one is small scale manufacturing. Okay, then an example of small scale manufacturing in Palampur. At present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Okay, तो वहां पे जो है 50 से भी कम लोग जो है इन
मैन्युफैक्चरिंग वर्क में जो है लगे हुए होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स एक तरह से बेसिकली मैन्युफैक्चर करना मीन्स किसी चीज को प्रोड्यूस करना। सो बिग सिटीज एंड डाउन व्हाट द पीपल डू, they do small scale manufacturing, unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production methods. Okay, so there are some people in Palampur, they are involved in small scale manufacturing. So this is one of the example of small scale manufacturing. Means वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो cities and towns में जो बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग है, तो घरों और खेतों में भी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है की जाती है। मीन्स फील्ड में उस चीज को वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बहुत ही सिंपल मेथड के थ्रू भी उसको किया जाता है। ओके, देन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बहुत सिंपल तरीके से या छोटी छोटी चीजों को मैन्युफैक्चर करना। ओके, देन दिस इज द सेकेंड वन एक्टिविटी of non-farm activity. Now नेक्स्ट थर्ड वन इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के दुकानदार। तो किस तरह की शॉपकीपिंग जो है वहां पे होती है। देन दोज पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। पालमपुर में अधिक लोग जो है, अधिक पीपल ऐसे नहीं है कि जो गुड्स को एक्सचेंज करते हो। ओके, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। ठीक है, तो वहां के जो ट्रेडर्स है वो वे दुकानदार हैं, वो शॉपकीपर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की जो थिंग्स हैं वो होलसेल मार्केट से परचेज करते हैं, सिटीज से, बाजारों से अलग अलग तरह की चीजें खरीदते हैं और उनको कहाँ सेल करते हैं, सेल देम इन द विलेज। ओके, यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज। आपने देखा भी होगा कि जो गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, और जैसे कि राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स, यहाँ तक कि कुछ कपड़े वगैरह भी वहां पे सेल किए जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मीन्स हम जो शॉपकीपर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जो शॉपकीपिंग है या इस तरह की शॉप्स जो है पालमपुर विलेज में कुछ ट्रेडर्स ने सेटअप की हुई है। ओके, a few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. Okay, तो कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं कि जिनके जो हाउसेज हैं वो बस स्टैंड के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। ठीक है, तो उन अपने घर के ही एक छोटे से पार्ट में, अपने घर के ही एक छोटे हिस्से में उन्होंने छोटी सी शॉप ओपन कर ली है। ठीक है, हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स जो उन्होंने खोल रखी है, और वहां पे दे सेल ईटेबल्स मीन्स खाने की वस्तुएं बेचते हैं, जैसे कि तेल हो गया, बिस्किट, ब्रेड, साबुन, इस तरह की मतलब छोटी छोटी थिंग्स जो है वो वहां पे सेल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज transport, a fast developing sector. Okay, fourth one is transport. So transport is the main important activity, included non-farm activities. So there are variety of vehicles on the road connecting Palampur. तो पालमपुर और रायगंज से जो कनेक्टेड है रोड, वहां उसके बीच के रोड पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो है, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं चलते हैं। रिक्शा वालास, तांगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ओके, मीन्स रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, और जो ट्रेडिशनल बलक कार्ट जो बैलगाड़ी है वो, दूसरी गाड़ियां चलाने वाले भी, ये वो लोग हैं। देन दोज ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। ओके, they ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. So many people are involved in this activity, from moving one place to another place for what they require transportation.
ओके तो ये दे फेरी पीपल एंड गुड्स मीन्स वो लोगों को वस्तुओं को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का पहुंचाने का काम करते हैं और इसके बदले में उनको क्या रिटर्न मिलता है, पैसे मिलते हैं उनको। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल डेज। तो बीते कई सालों में जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की संख्या है, नंबर ऑफ पीपल हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। ओके तो पर इससे जुड़े हुए लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। लाइक दैट अभी हम ऑटो रिक्शा इस तरह से जाते हैं तो हम उनको एक किराया या एक रेंट जो है उनको पे करते हैं, रिटर्न देते हैं उनको, तो तब हमें वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ओके इसी तरह से पालमपुर विलेज की जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है वो हमने देखा। ओके स्टूडेंट्स, देन दीज आर द 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर एंड यू कैन रीड सम स्मॉल एग्जाम्पल्स that is given here, Kishora and Mishrilal and Kareem. Okay, then you must read this chapter and watch this video to clear this concept, and this chapter is complete now. Tomorrow we will do exercise of this chapter. Okay, thank you.